أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق الله العظيम. ये आयत नंबर 58 है। इसमें कुछ अल्फाज जो है मिस है। वइज़ा इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ठीक है, ये खर्रू सुज्जदन व बुकिया ये अल्फाज मिस है यहाँ पे। ये मैंने निशान लगा दिया, मैंने सही पढ़ा है, तो यहाँ पे अल्फाज जो है वो मिस है कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये सूरह मरियम आयत नंबर 51 से आयत नंबर 65 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अब इन आयात का तर्जुमा और तफसीर जो है वो आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो जो पहली आयत है वज़कुर फिल किताबी मूसा, अब ये स्ट्रक्चर आप सबको मालूम भी हो गया होगा। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम, वज़कुर फिल किताबी मूसा, वज़कुर फिल किताबी मरियम, इससे पहले हमने पढ़ लिया ना। तो इसका माना क्या होता है? वज़कुर, और आप जिक्र कीजिए, फिल किताबी, किताब में, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम का। ठीक है। इन्नहु, बेशक वो, काना था वो, मुखलसन, खालिस किया हुआ, वकाना और था वो, रसूलन नबिया, भेजा हुआ नबी, भेजा हुआ नबी। तर्जुमा क्या हुआ इस किताब में? मूसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा कीजिए। बेशक वो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे थे, मुंतखब किए हुए, खालिस किए हुए बंदे थे, रसूल और नबी थे। वनादैनाहु, व
اور نادینا ہم نے پکارا ہو اسے من جانب الطور الایمنی، جانب الطور الایمن، جانب جانب کو کہیں گے، الطور الایمن، ایمن دائیں کو کہتے ہیں، طور پہاڑ کا نام ہے، طور کی دائیں جانب سے، طور کی دائیں جانب سے، ٹھیک ہے۔ وقربناہ اور ہم نے قریب کیا اسے، نجیہ سرگوشی کرتے ہوئے، تو کیا ترجمہ کریں گے کہ ہم نے انہیں کوہ طور کے دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کے اپنا قرب عطا کیا، اپنا رازدار بنا کے اپنا قرب عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے عطا کیا لہو اسے من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ اس کا بھائی، ہارون نبی، یا ہارون کو نبی بنا کے، ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ بے شک وہ تھا، صادق الوعد وعدے کا سچا، وَكَانَ رسول النبی اور وہ بھیجا ہوا نبی بھی تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ، وَكَانَ يَأْمُرُ اور کان یأمر، یہ دونوں ایک ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، کان یأمر ماضی استمراری اس کو کہا جاتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ اور وہ حکم دیا کرتا تھا، اہلہ اپنے گھر والوں کو، کس چیز کا؟ بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا، وکان اور وہ تھا، عند ربہ اپنے رب کے نزدیک، مرضیہ پسندیدہ، یعنی وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اب یہ اسٹرکچر تو آپ سب کو یاد ہو چکا ہے، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ تھا، صدیقہ نہایت سچا، نبی یا نبی، وَرَفَعْنَاهُ اور رفعنا ہم نے بلند کیا اسے، مکانا علیہ بہت اونچے مقام پر، بہت اونچے مقام پر ہم نے اسے کیا کیا؟ بلند کیا۔ اولئک یہی الذین وہ لوگ ہیں جو انعم اللہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا علیہم ان پر، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین نبیوں میں سے، من ذریت آدم آدم کی اولاد میں سے، من ذریت آدم آدم کی اولاد میں سے، کہ آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ٹھیک ہے۔ وَمِمَّن اور ممن ان کی نسل میں سے، حملنا جنہیں ہم نے اٹھایا یعنی سوار کیا، مع نوح نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وإسرائیل اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا اور ان میں سے جنہیں ہدینا ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا اور ہم نے چن لیا، وَاجْتَبَيْنَا اور ہم نے چن لیا، مطلب یہ سب ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ اذا تتلا جب پڑھی جاتی تھی، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر یعنی ان کے سامنے، آیات الرحمن رحمان کی آیتیں، خرو وہ سب گر پڑتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، و بکیا اور روتے ہوئے، وہ سب گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، یہ دو الفاظ جو ہے وہاں پہ جب ہم تلاوت کر رہے تھے لکھے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، خرو اور سجدہ، تو یہ آیت سجدہ بھی ہے، آپ لوگوں نے سجدہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فخلف پھر جانشین ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، خلف کچھ ناخلف لوگ، برے لوگ، اضاعوا الصلاۃ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی، فسوف تو عن قریب، یلقون وہ سب ملاقات کریں گے، ملیں گے، غیا گمراہی کو، یعنی ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، تو ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔
इल्ला मगर जिसने ताबा तौबा की व आमन ईमान लाया व अमिला और अमल किया सालिहन नेक उलाइका तो यही लोग है यदखुलून अल जन्नत वो सब के सब जन्नत में दाखिल होंगे वला युज़लमून और जुल्म नहीं किया जाएगा उन सब पर कुछ भी शैआ कुछ भी जन्नात अदनिन हमेशा हमेशगी के बागात है अल्लती जो वादा किया है अर्रहमान रहमान ने इबादहू अपने बंदों से बिलगैब गायबाना उनका दाखिला ऐसे हमेशा बाकी रहने वाली बागात में होगा जिनका खुदाए रहमान ने अपने बंदों से उनके देखे बगैर वादा कर रखा है इन्नहु बेशक काना वो वादा ऐसा है वादहू मतिया कि वो पूरा होके रहने वाला है ला यस्माऊना वो सब नहीं सुनेंगे फीहा उसमें यानी जन्नत में लगवन कोई लगाव बात इल्ला सलाम मगर सलाम यानी उसमें सलामती की बातों के अलावा कोई लगाव बात नहीं सुनेंगे वलहुम और उनके लिए रिस्क हम उनका रिस्क है फीहा उसमें बुकरतन सुबह भी व आशिया और शाम को भी वहां उनका रिस्क उन्हें सुबह शाम मिला करेगा तिलकल जन्ना यही जन्नत है अल्लती जिसका नूरिस हम वारिस बनाएंगे मिन इबादिना अपने बंदों में से मन जो काना होगा तकिया परहेजगार ये है वो जन्नत जिसका हम अपने बंदों में से वारिस बनाएंगे जो मुत्तकी होगा वमा नतनज़्ज़लु और हम नहीं उतरते इल्ला बिअम्रि रब्बिक मगर आपके रब के हुक्म से लहू उसी का है मा बैना ऐदीना जो हमारे हाथों के दरमियान में है जो हमारे हाथों के दरमियान में है हमारे आगे है वो भी उसी का है वमा खल्फना और जो हमारे पीछे है वमा बैन ज़ालिका और जो इसके दरमियान में है यानी फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं कि हम आपके रब के हुक्म के बगैर उतर के नहीं आते जो कुछ हमारे आगे है हमारे पीछे है और जो कुछ उनके दरमियान में है वो सब उसी की मिल्कियत है वमा कान रब्बुका और नहीं है आपका रब नसिया भूलने वाला तुम्हारा रब ऐसा नहीं है जो भूल जाया करे रब्बुस समावाति वल अर्द आसमानों का रब और जमीन का रब वमा बैनहुमा और जो उन दोनों इन दोनों के दरमियान है फाबुद हो तो आप उसकी इबादत कीजिए वस्तबिर और कायम रहिए ले इबादत ही उसकी इबादत पर हल तालमु लहू समिया क्या आप जानते हैं उसका समिया कोई हम नाम रब समावाति वल अर्ज़ वो आसमानों और ज़मीन का भी मालिक है रब है और जो मखलूक़ात इनके दरमियान है उनका भी मालिक है लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पे जमे रहो क्या तुम्हारे इल्म में कोई और है जो इस जैसी सिफात रखता हो जो इस जैसी सिफात रखता हो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इन आयात का तर्जुमा बयान कर दिया उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा तो इससे पहले मुख्तलिफ अम्बिया का तज़किरा चला आ रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया ठीक है फिर अब यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया वज़कुर फिल किताबी मूसा ए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप किताब यानी कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करें इन्नहु काना मुखलसा बेशक आप मुंतखब शुदा बरगुज़ीदा थे सूरह आराफ में हमने पढ़ा था अल्लाह ताला ने बात इस तरह बयान की या मूसा इन इस्तफ़ैतुका अलन्नास
या मूसा इन इस्तफैतुका अलन नासी बिरिसालाती व बिकलामी, क्या मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैंने तुझे अपनी रिसालत और कलाम के साथ मुंतखब किया है, और अल्लाह ताला ने आपको शरफ ये तकल्लुम बख्शा और फरमाया कि आप उसी इनाम पर इक्तिफा करें और बिलमुशाफत देखने की ख्वाहिश ना करें। मुखलसन में दो किराआतें हैं। मुखलसन में क्या है? दो किराआतें। अगर मुखलिसन पढ़ा जाए तो ये फाइल का सीगा बनता है बाब इफ़ाल से। इसका माना होगा निहायत इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत करने वाले। आपकी इबादत बिल्कुल खालिस थी, उसमें शिरक या रिया का शायबा तक नहीं था, क्योंकि इखलास और बरगुजीदगी जब ही पैदा होती है जब ये चीज़ें ना हो। सूरह मोमिन में अल्लाह ताला का फरमान है, फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, तुम खालिस उसी की इबादत करते हुए अल्लाह ताला को पुकारो। और इस लफ्ज़ की दूसरी क़िराअत मुखलसन है, जिसका माना मुंतखब शुदा, बरगुजीदा, और ये मफ़ऊल का सीगा है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत और नबूवत की गवाही भी दी। वकाना रसूलन नबिया, अब अल्लाह के रसूल और नबी थे। आपको मालूम है कि रसूल वो होता है जिसे अल्लाह ताला ने मुस्तकिल शरीयत अता की हो, किताब या सहीफा अता किया हो, और नबी वो होता है जिसके लिए मुस्तकिल शरीयत नाजिल नहीं होती, बल्कि वो साबिक़ा शरीयत ही की तबलीग करता है। बनी इसराइल के हज़ारों अम्बिया सिर्फ तौरात की तालीम देते रहे, ताहम वही इलाही नबी और रसूल दोनों पे नाजिल होती है। रसूल और नबी में एक और इम्तियाज़ ये है कि रसूल का इतलाक़ इंसानों के अलावा मलाइका पे भी होता है। अल्लाह ताला मलाइका को भी रसूल बना के भेजता है। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, कि अल्लाह ताला फरिश्तों और लोगों में से रसूल जो है वो मुंतखब करता है। ठीक है। अलबत्ता नबी का इतलाक़ सिर्फ इंसानों पे होता है, और वो भी अल्लाह का पैगाम लाते हैं। इल्म कलाम वाले नबी की तारीफ इस तरह फरमाते हैं कि इंसान बअसहुल्लाहु लितबलीगी मा ऊहिया इलैह, कि नबी वो होता है जिसकी तरफ वही की जाती है। एक सूरत में रसूल आम है कि उसका इतलाक़ फरिश्तों और इंसानों दोनों अनवा पे होता है, और नबी ख़ास है कि ये सिर्फ इंसानों में से होते हैं। और दूसरी सूरत में नबी आम है कि इसका इतलाक़ नबी और रसूल दोनों पर होता है जिसकी तरफ वही की जाती है। और रसूल ख़ास है कि ये लफ्ज़ सिर्फ साहिब किताब और साहिब शरीयत के लिए इस्तेमाल होता है, और साबका कुतुब की तबलीग करने वाले पर, अंबिया पर उसका इतलाक़ नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया, वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर उनकी दाईं जानिब से पुकारा। यहाँ पर लफ्ज़ यमन का ताल्लुक मूसा अलैहिस्सलाम से है, न कि पहाड़ से, क्योंकि पहाड़ का दायां बायां पहलू नहीं होता। तो जुमले का मतलब है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी दाईं तरफ से आवाज़ दी। ये उस वक्त का वाक़या है जब आप मदियन से वापस मिस्र आ रहे थे। वक़र्रबनाहु नजिया, और हमने उन्हें करीब किया सरगोशी के लिए। अल्लाह ताला ने दरमियान वाले बहुत से हिजाबात उठाकर मूसा अलैहिस्सलाम को अपने इतना करीब कर लिया कि आप आलम बाला में मलाइका के कलमों के चलने की आवाज़ सुन रहे थे। ये मूसा अलैहिस्सलाम का इंतहाई उरूज था। और फिर क्या हुआ?
वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से बराह रास्त कलाम फरमाया, जबकि दरमियान में कोई वास्ता नहीं था। फिर आगे इरशाद हुआ, वहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिया, हमने अपनी रहमत खासा से मूसा अलैहि सलाम के भाई हारून अलैहि सलाम को भी नबी बनाया। मूसा अलैहि सलाम ने खुद अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, मेरे भाई हारून को मेरा मुआविन बना दे, क्योंकि वो ज़ुबान में मुझसे ज़्यादा फसीह है। तो अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता की, और फिर इन दोनों को फ़िरऔन और उसके हवारियों की तरफ मामूर किया कि जाकर उन्हें खुदा का पैगाम सुनाए। दोनों भाई अपनी कौम बनी इसराइल की तरफ भी नबी थे, उनकी तालीम और तरबियत भी उन्हीं के ज़िम्मे थी। अल्लाह ताला ने दोनों को बड़ी बुजुर्गी और शान अता फरमाई। ये भी लोगों को अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ दावत देते थे, कुफ्र और शिर्क की मजम्मत बयान करके लोगों को बाज रहने की तलकीन करते थे। तो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा आ चुका है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मुस्तकिल तौर पे तज़किरा आ रहा है। वज़्कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिय्या, क्या आप किताब यानी कुरान मजीद में इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी करें। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में बयान कर चुके हैं कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी बीवी हज़रत सारा की बतन में से थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा हाजिरा थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके मिस्र पहुंचे, तो मिस्र के बादशाह ने हज़रत हाजिरा बतौर लोंडी हज़रत सारा की खिदमत के लिए दी। आपने ये लोंडी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बख्श दी। ठीक है, जिन्होंने फिर उनसे निकाह किया और अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा अजीम फर्जंद अता फरमाया। अलबत्ता इस्माईल अलैहिस्सलाम पहले पैदा हुए और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम उसके 14 साल बाद पैदा हुए। फिर आगे अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम से इतनी कसीर औलाद पैदा की कि पूरा अरब और आजम उनसे भर गया। अरब के लोग हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद होने पे फख्र करते थे। अल्लाह ताला ने आपका तज़किरा करके मुशरिकीन अरब को तंबी करके कहा कि देखो, हमारे आबा व अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तौहीद की दावत देते थे, मगर तुम शिर्क में कैसे मुब्तला हो चुके हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की ये सिफत बयान की, इन्नहु कान सादिक़ल वादी, बेशक आप बड़े सच्चे वादे वाले थे, वकान रसूलन नबिया, और आप अल्लाह के रसूल और नबी थे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम तो बिलाशुबा वादे के सच्चे होते हैं, मगर आम मोमिनों में भी सिफत पाई जानी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल ईदतु दैनुन, यानी वादा एक कर्ज है जिसको चुकाना, जिसका चुकाना और पूरा करना जरूरी है। वादा करके खिलाफ वर्जी करना मुनाफिक की निशानी है, क्योंकि मुनाफिक की एक निशानी ये है, इज़ा वअदा अखलफा, जब वो वादा करता है तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि किसी शख्स ने इस्माईल अलैहिस्सलाम से किसी मकाम पर मिलने का वादा किया, आप वहां पहुंच गए मगर वो शख्स न आया, हत्ता कि मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक आपको वहां 3 दिन, 1 माह या साल भर इंतजार करना पड़ा। तो पाबंदी आहद की उम्दा मिसाल है। अबू दाऊद शरीफ में ये रिवायत भी आती है कि क़ब्ल अज़ नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेन देन के मामले में अब्दुल्ला इब्ने अबू अलहमा नामी शख्स से बातचीत हो गई। उसने कहा कि आप यही ठहरे, मैं अभी फलां चीज़ लेके आता हूँ। इत्तेफाक की बात है कि वो शख्स अपना वादा भूल गया। 3 दिन के बाद उसे वादा याद आया और वहां पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुंतज़िर पाया। आपने फरमाया, ए नौजवान, तूने हमें मशक्क़त में डाल दिया। तो इस तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम भी वादे के बड़े पक्के और सच्चे थे।
وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو یا مخلوق سے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تاجروں کو بھی اپنے وعدے کا ضرور پاس کرنا چاہیے، اور یہی ذمہ داری حکومت پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی معاہدات پہ عمل درآمد کرے۔ اخلاق کا دار و مدار ایفا عہد پر ہے، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والا منافق جو ہے ہمیشہ ذلیل اور خوار ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام سچے وعدے والے اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے تھے۔ اہل سے مراد پوری قوم بھی ہو سکتی ہے کہ سب کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ دونوں بنیادی عبادات ہے۔ نماز کے ذریعے تعلق باللہ جو ہے وہ درست ہوتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے مخلوق خدا کے ساتھ تعلقات جو ہے درست ہوتے ہیں، اور یہ نفس کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک مومن اور غیر مومن کے درمیان یہی عبادات علامات فارقہ بھی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کفار، مشرکین اور منافقین کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ تائب ہو کے نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو وہ تمہارے دینی بھائی بن گئے۔ اب جھگڑے ختم ہو گئے، ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ شخصیت تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، وعدے کے سچے تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے، نماز زکوٰۃ کی پابندی کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، گویا آپ اللہ تعالیٰ کے منظور نظر تھے۔ مراد یہ ہے کہ عربوں کو بھی لازم ہے کہ وہ انہی کا طریقہ اختیار کرے جن کی وہ اولاد ہے، کفر اور شرک کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنا لے۔ کتنی بری بات ہے کہ اپنی نسبت تو ان پاک ہستیوں کی طرف کرتے ہیں، مگر ان کے طریقے کے سراسر خلاف چلتے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ آپ کتاب یعنی قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کریں۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نوح علیہ السلام سے پہلے تھے یا انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ صاحب مدارک اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ پر کئی صحیفے بھی نازل ہوئے، اور یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے بنی نوع انسان کی سہولت کے لیے کئی چیزیں ایجاد کی۔ مثلا سب سے پہلے قلم کے ساتھ لکھنا انہوں نے شروع کیا، کپڑے سینے کی سوئی اور جنگی اوزار انہی کی ایجاد ہے، انہوں نے ترازو بھی بنایا، آپ علم فلکیات میں بھی مہارت رکھتے تھے، دنیا میں ریاضی کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ذریعے جاری کیا۔ انہ کان صدیق اور نبی، بے شک وہ صدیق اور نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ادریس علیہ السلام کو اونچا مقام، بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مکانا علیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر ہی اٹھا لیا تھا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ شب معراج میں چوتھے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ اسرائیلی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی کسی فرشتے کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، اور فرشتہ انہیں اپنے پروں میں چھپا کر آسمانوں پہ لے گیا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ملک الموت آپ کو زمین پر تلاش کرنے لگا، مگر اس میں ناکام ہوا۔ پھر اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہو گئی، فرشتے نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ ادریس علیہ السلام کی زندگی کا کتنا حصہ باقی ہے، تو اس نے کہا کہ میں تو انہی کی تلاش میں ہوں، کیونکہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کروں۔ فرشتے نے اپنے پر کھولے، ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے۔
चुनांचे उनकी रूह वही कब्ज की गई। इस रिवायत को काब अखबार ने बयान किया, मगर ये यकीनी बात नहीं है, सिर्फ आपका चौथे आसमान पर होना ये सही हदीस से साबित है। मकान आलिया से शरफ और बुजुर्गी भी मुराद हो सकती है। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई जो नौ इंसानी में बुलंद तरीन मरतबा है। आप पर सहीफे भी नाजिल हुए तो गोया आप आली मरतबत है। इस आयत में इदरीस अलैहिस्सलाम का इजमाली बयान है, ताहम आपका मजमूई तज़किरा जिसमें आपकी तबलीग और मिशन का जिक्र है वो बाद में आएगा। तो ये अंबिया का तज़किरा करने के बाद आगे फरमाया जा रहा है, उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, ये वही लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, मिनन नबिय्यिन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम, ये लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से थे। यानी सब के सब हज़रात ज़करिया, यहया, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इस्माइल, मूसा, हारून, इदरीस अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला के मुंतखब किए हुए नबी थे। और फिर इस सूरत के आखिरी हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी आएगा। तो ये सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, इंसान थे, बशर थे, और ये उनमें से भी थे। वमिम्मन हमलना मअ नूह, जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया। उस वक्त जमीन पर तमाम नाफरमान जो है वो खत्म कर दिए गए, सिर्फ वही बाकी बचे रहे जो कश्ती नूह पे सवार हो गए। फिर आगे दुनिया की आबादी कश्ती में सवार नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटों आम, साम और याफत से हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारे अरब जो है साम की औलाद में से थे। तो बहरहाल फरमाया कि ये नबी उन लोगों में से थे जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया। फिर उनमें से बहुत से जो थे वह मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराइल, उनमें से बहुत से वो थे इब्राहिम और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जिनसे आगे 12 कबीले बने, शाम और फलस्तीन में फैल गए। और उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी 12 बेटे थे। आपकी नस्ल पूरे अरब में फैल गई। इन सब अंबिया के मुतालिक फरमाया वमिम्मन हदैना, कि ये उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत बख्शी और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की, वज्तबैना, जिनको हमने पसंद किया और बरगुज़ीदा बनाया। तो इन सब की हालत ये थी, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब इनके सामने कुरान मजीद की आयात, रहमान की आयात तिलावत की जाती है, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, तो रोते हुए सजदे में गिर पड़ते हैं। इन तमाम मज़कूरा अंबिया में से कोई भी ऐलान नहीं था, ना इन्होंने अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरी ज़ात की उलूहियत का दर्स दिया, बल्कि वो सब के सब अल्लाह ताला के सामने सजदरेज़ होने वाले थे, अपनी अपनी अक़वाम को यही दर्स देते रहे। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि इनके बाद लोगों ने उन्हीं को माबूद बना लिया। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को उलूहियत का दर्जा दे दिया, यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम इख्तियारात सौंप दिए, कहने लगे कि आप दोज़ख के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और किसी खतना शुदा यहूदी को दोज़ख में नहीं गिरने देंगे। इन्होंने अल्लाह ताला की सिफात में इन अंबिया को शरीक कर लिया, हालांकि वो सब अंबिया अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होने वाले थे, उनके सामने आजिज़ी का इजहार करते थे। अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। अल्लाह ताला ने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचपन से ही बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाला और फिर उनको कामयाब किया। ये सारी बात अल्लाह ताला ने शिर्क की तरदीद के सिलसिले में बयान फरमाई। ताकि अल्लाह ताला ने वो वजह भी बयान की जिसकी बिना पे लोग अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा अंबिया को उलूहियत के मनसब पे फाइज करते हैं। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन वरिसुल किताब फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात। फिर उन अंबिया के बाद ऐसे नालायक लोग आए, खल्फ लाम के सुकून के साथ नालायक को कहते हैं जो जानशीनी का हक अदा ना कर सके, लाम के सुकून के साथ। ये ऐसा ही है जैसे हिंदी में लायक बेटे को सपूत और नालायक को कपूत कहा जाता है। तो उनके बाद नालायक आए, खल्फ आए।
अज़ाउ सला, जिन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया, और वो ऐसी इबादत को छोड़ बैठे जिसके ज़रिए अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होता है। और इसके अलावा वत्तबअु शहवात, उन्होंने ख्वाहिशात की पैरवी की, अच्छे बुरे में तमीज़ ना की। आजकल पूरी दुनिया में ये बीमारी आम है। हर कोई खेल तमाशे, लहव लाभ, ज़ेब व ज़ीनत और आराम व आसाइश के पीछे भाग रहा है। काफिर तो वैसे ही मुहासबा या अलमाल को तस्लीम नहीं करते। अब मुसलमान भी उनकी देखा देखी उसी रविश पे चल निकले हैं। बहुत कम नमाजी रह गए, वरना अक्सरियत बेनमाजों की है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया और ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े। वसौफ यल्कौन गय्या, ये लोग अनकरीब गुमराही के नतीजे को पहुंचेंगे। गई जहन्नुम की एक वादी का नाम भी है। अगर ये माना किया जाए तो मतलब होगा कि ऐसे नालायक जहन्नुम की वादी गए में पहुंचेंगे जो अल्लाह ताला ने गुमराहों के लिए पैदा कर रखी है। तो गुमराही का नतीजा यकीनन उनके सामने आने वाला है। अलबत्ता गुमराही से बच निकलने वाले नेक लोग भी होंगे। इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहा, वो कौन से लोग होंगे? जो तौबा करेंगे, अल्लाह ताला की वहदानियत पे ईमान लाएंगे, नेक अमाल करेंगे। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह, तो यही लोग हैं जो यकीनन जन्नत में दाखिल होंगे। ऐसे बागात जो रहाइश के काबिल होंगे, इनमें नहरें बहती होंगी, आराम और आसाइश की तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। नेक लोग उनमें दाखिल होंगे। वला युज़लमून शैआ, और उन पर किसी किस्म की ज्यादती नहीं की जाएगी, बल्कि उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जन्नत आदनिन लती वअद अर्रहमान इबादहु बिल गैब, इन चीज़ों का अल्लाह ताला ने अपने बंदों के साथ बगैर देखे वादा कर रखा है। बगैर देखे वादा कर रखा है। गैब का माना बगैर देखे। लोगों ने मज़कूरा जन्नत को देखा नहीं, मगर उन्होंने जन्नत और दोज़ख को बरहक तस्लीम किया, तो उन्हें ये इनाम ज़रूर मिलेगा। इन्नहु कान वअदुहु मअतिया, बेशक तेरे परवरदिगार का ये वादा सामने आने वाला है, यानी ये ज़रूर पूरा होके रहेगा। इन जन्नतों की कैफियत ये होगी, ला यस्मऊना फिया लगवन इल्ला सलामा, ला यस्मऊना, ला यस्मऊना, वो नहीं सुनेंगे, फीहा, उसमें, लगवन इल्ला सलामा, ला यस्मऊना, वो नहीं सुनेंगे, फीहा, उसमें, ला यस्मऊना फिया लगवा, कि यहाँ के रहने वाले यहाँ कोई बेहुदा बात जो है वो नहीं सुनेंगे। इल्ला सलामा, वहाँ सलामती ही सलामती की आवाज़ आएगी। फरिश्ते भी सलाम करेंगे, जन्नती जो है वो भी एक दूसरे को सलाम करेंगे, और अल्लाह ताला की तरफ से भी सलाम होगा, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। ठीक है। वहाँ हर शख्स जो है वो मुतमईन होगा, हर शख्स बाइज़्ज़त होगा, किसी की तहकीर और तजलील नहीं होगी, ना कोई ज़हनी कुफ़्फ़त होगी, ना जिस्मानी अज़ियत पहुँचेगी। वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व अशिय्या, और अहले जन्नत के लिए सुबह शाम बेहतरीन रोज़ी का इंतज़ाम होगा। आमतौर पे लोग दुनिया में भी सुबह शाम खाना खाते हैं, तो जन्नत में भी नेक आदमियों को इन्हीं औकात में अल्लाह ताला की तरफ से बगैर मेहनत और मशक्क़त बेहतरीन रोज़ी मुयस्सर होगी। दुनिया में तो रहने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, परेशानियाँ उठानी पड़ती है, फिर कहीं दो वक्त की रोटी जो है मुयस्सर आती है, मगर जन्नत में अल्लाह ताला बगैर मेहनत के बाइज़्ज़त रोज़ी अता फरमाएगा। अहले जन्नत की ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा, उनकी मनपसंद मेहमान नवाजी की जाएगी। बात समझ आ गई? फिर आगे फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना, ये वो जन्नत है जिसका हम वारिस बनाएंगे अपने बंदों में से। और वो बंदे कौन से होंगे? मन कान तकिया, जो परहेजगार होंगे।
عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ متقی سے مراد ایسا شخص ہے جو کفر اور شرک سے بچنے والا ہو۔ اس درجے کا اتقاء ہر آدمی کے لیے لازم ہے، ورنہ جنت کا داخلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کبیرہ، صغیرہ اور شکوک و شبہات سے بچنا یہ اعلیٰ درجہ اور کامل الایمان ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تقوی کے حوالے سے کئی مرتبہ میں آپ کو تفصیلات بتا چکا ہوں۔ تو تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کا وارث کن کو بنایا جائے گا؟ جو متقی ہوں گے، متقیوں کو بنایا جائے گا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ مگر تمہارے رب کے حکم کے ساتھ، إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ مگر تمہارے پروردگار کے حکم سے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم صرف متقیوں کو ہی جنت کا وارث بناتے ہیں۔ اب تفصیلاً یہ فرما دیا کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ اس سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا یہ کسی اور کی طرف منسوب ہے؟ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن مجید کے سیاق و سباق کو سمجھنا اس لیے دشوار ہو جاتا ہے کہ لوگ کلام کے مرجع کو نہیں سمجھ پاتے، تو یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زبان سے کہلوایا کہ ہم تیرے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا بڑا شوق رہتا تھا۔ جب کبھی ان کے آنے میں دیر ہو جاتی تو آپ کا اشتیاق مزید بڑھ جاتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی نے سوال کیا جس کا جواب آپ کو وحی الہی کے ذریعے مطلوب ہوتا، تو جب بھی آپ جبرائیل علیہ السلام کے منتظر رہتے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سورت میں پڑھا کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ساتھ ساز باز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف، روح اور ذوالقرنین کے بارے میں سوالات کیے، جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف کے ذریعے دیے۔ تو ایسے مواقع پر جب جبرائیل علیہ السلام کی آمد معمول سے مؤخر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ ایسے ہی ایک موقع پہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا الا تزور اکثر مما تزور، اے جبرائیل آپ عام معمول سے زیادہ کیوں نازل نہیں ہوتے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کے جبرائیل اور دیگر فرشتوں کا یہ جواب ارسال کیا کہ ہم نہیں اترتے مگر تیرے پروردگار کے حکم سے۔ مطلب یہ کہ ہم اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کا پیغام لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ملائکہ کو معبود ماننے والوں کا بھی رد ہو گیا۔ جو فرشتے خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا جو کوئی فرشتوں کو الہ مان کر ان سے حاجت طلب کرے گا وہ مشرک بن جائے گا۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، سب کچھ اسی اللہ تعالیٰ کا، جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہیں، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ اور جو کچھ درمیان میں ہے۔ گویا کہ ہر طرح کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہر طرح کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سامنے سے مراد مستقبل، پیچھے سے مراد ماضی اور درمیان سے مراد زمانہ حال بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل اور ہمارے تمام اطراف کے اختیارات جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ اپنی اختیارات کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ ہم سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطیع ہیں اور اسی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، وحی لاتے ہیں، لہذا جلدی ہو یا بدیر آنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور ساتھ یہ حقیقت بھی ہے کہ تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی حکم کا انتظار ہو اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک پیغام دینا ہی بھول جائے، بلکہ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جب چاہتا ہے ہمیں پیغام دے کر آپ کی طرف بھیجتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟
रब्बुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, अल्लाह ताला ही जो है रब है आसमानों और जमीन का, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है। अल्लाह ताला ही आसमानों और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान में है उसका रब है। फ़अबुदहु, लिहाजा आप उसी की इबादत करें। वस्तबिर लिइबादती, और आप उसी की इबादत पे कायम रहे, यानी अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे की इबादत ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो यकीनन गिरफ्त होगी, सजा होगी। तमाम फरिश्ते, तमाम अंबिया उसी ज़ात की इबादत करने वाले हैं, लिहाजा आप भी उसी पे कायम रहे। उससे इबादत पे सब्र करना भी मुराद लिया जा सकता है। ज़ाहिर है कि इबादत के लिए भी मशक्क़त बर्दाश्त करना पड़ती है। नमाज के लिए सर्दी गर्मी में वज़ू करना, लंबा क़ियाम करना, रुकू और सजदा करना, वक़्त की पाबंदी को मलहूज़ ख़ातिर रखना, ये मशक्क़त तलब उमूर है। इसी तरह रोज़े में भूख प्यास बर्दाश्त करना, हज के सफ़र में मुश्किलात से दो चार होना, माल खर्च करने में बड़ी तकालीफ उठाना पड़ती है, जिन पे सब्र की ज़रूरत होती है। इसलिए इबादत पर सब्र की तलकीन भी मुनासिब हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत के इर्द गिर्द नागवारियों और मुश्किलात की बाढ़ लगा दी गई, लिहाजा इन दुश्वारियों को अबूर करके इंसान जन्नत पहुंच सकता है। ये भी एक मुश्किल काम है, इस पर इस्तिकामत और सब्र के लिए कहा गया। आगे अल्लाह ताला की सिफत बयान की गई, हल तालमु लहू समिया, क्या तू उसका कोई हम नाम जानता है। समिया का माना हम नाम होना। यहया अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमने पढ़ा, लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम की विलादत की खबर दी और साथ फरमाया कि इस नाम का पहले कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। और समिया का माना हम मिसल भी होता है। तो इस तरह माना ये होगा, क्या अल्लाह ताला का कोई हम मिसल है। यकीनन नहीं है। अल्लाह ताला तो हर एतबार से बेमिसल और बेमिसाल है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफ़ात में बेमिसल है, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं है। वो वहदहू ला शरीक है, लिहाजा उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए, लिहाजा उसी की इबादत पे कायम रहें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।